वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्ते। एंड आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो क्लास 8 चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद की ज़रूरत क्यों है, इसके ऊपर है। और आज हम इस चैप्टर को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज़ पार्ट 1, यह पहला भाग है इस चैप्टर का। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। So before we understand what is a parliament, why do we need a parliament, we need to understand what is a parliament. So parliament क्या है, संसद क्या है? So a parliament is a supreme legislative body of nation made up of people's representative. I repeat, parliament is a supreme legislative body of a nation made up of people's representative. So students will wonder, what do you mean by legislative? Legislative एक difficult term sound होती है, तो in simpler words, legislative means law making. यह एक कानून बनाने वाली संस्था है, संगठन है। और सुप्रीम मीन्स उच्च। इस देश की सबसे बड़ी जो कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भाग लेने वाली जो एक संगठन है, वह हमारा पार्लियामेंट या संसद है। इसे हम संसद कह सकते हैं। और पार्लियामेंट का मेन काम ही यही होता है कि कानून बनाना, कानून को एबॉलिश करना और उस कानून को हटाने के बाद कुछ नए और कानून लाना और कुछ कानूनों में बदलाव लाना। जो एक ऐसी असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मीन्स पीपल whom we elect, people who represent our interest, our ideologies, and who on our behalf will take decisions. So anybody who will take decision on my behalf is my representative. And in a country, people's representative are MLAs and MPs, and the people who sit in the parliament are simply called members of parliament. So they are called MPs. So people's representative are MPs. So now we have understood what do we mean by parliament. Parliament is a supreme law-making body of a country made up of people's representative. So now let us move forward and let us understand the major question that the chapter tries to highlight, that why do we need a parliament. So in a parliament, the basic function is that in parliament, people who are elected by the citizens come together to discuss, debate, and formulate policy decisions and take decisions for the country, for the better administration, for the better governance, and for the strategic goals of the country. In simpler words, that overall a parliament ensures, parliament का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इवेंचुअली जो सिटीजन्स हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, वही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी, इन अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेसीज टेस्ट इज डन बाय द लेवल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। हम किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को या एक किसी कंट्री को जज करते हैं कि वो डेमोक्रेसी है कि नहीं, इसी बेसिस पे कि वहाँ के लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। एज वी नो द फेमस कोट बाय अब्राहम लिंकन, दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो जो पीपल हैं वो डिसीजन मेकिंग लेंगे तभी वो कंट्री डेमोक्रेसी बन सकेगी। अब उस कंट्री को डेमोक्रेसी बनाने के लिए पीपल को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट इंश्योर करता है कि सिटीजन्स टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग. It enables the citizens to be part of the policy making and to select and be part of the decisions that affect them. So now let us understand that why people should decide. Now we have understood that we need parliament because we want people to be part of decision making. So but some students will ask, sir, but why do we need people to decide? Why can't a ruler or a king will decide everything for us? It used to happen in earlier times. We had Mughals, we had other Rajput rulers in the north, we had other Chola kings
and there were many other kingdoms, and we had small princely states. So why can't we allow them to make decision? We can't allow them to make decision. We can't allow a ruler to make decision, because it is a tendency that a ruler generally may be a good ruler, but eventually he may take decisions for his personal benefit and not take into consider people's interest. So that is why we chose democracy, and in a democracy people decide. And the major question is why people should decide. So let us give a few points to substantiate that why people should decide, that लोगों को क्यों निर्णय लेना चाहिए. Number one, that freedom struggle based on decision making by people. हमने हमारे भारत देश पर 200 साल तक अंग्रेजी हुकूमत का राज रहा, और उस 200 साल तक हमने यह देखा कि अंग्रेजों द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे उसमें भारतीय लोगों का कोई भी पक्ष नहीं होता था. भारतीय लोगों की कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई भी भागीदारी नहीं होती थी. तो हमारे जो नेता थे जिन्होंने हमारा नेतृत्व करा, ऑल आवर नेशनल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, starting from 1885, the day from 1885 was the year of the foundation of Congress. Starting from 1885, we laid the demand in front of the Britishers that you should allow Indians to be part of the decision making. You should allow us to be a part of the decision making process and part of the law making process. कि जो बजट बनता है उसमें हमको बिठाया जाए, क्योंकि टैक्स कितना लगना चाहिए वो हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है, कितना रैशनल टैक्स है, तो उसके लिए हमें खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो ये 1885 से डिमांड स्टार्ट हुई, और डिमांड ये भी रहती थी कि लोगों को इलेक्शन हो इंडिया के अंदर, और लोग अपने लीडर्स को चुने और वही एंड में उनके लिए कानून बनाए, ना कि ब्रिटिशर्स जो कि किसी दूसरी कंट्री के हैं और हमारे यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को, उनके कल्चर को नहीं जानते. सो हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल ही पूरा इसी के ऊपर बेस्ड था कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे. स्वराज की भावना थी कि सेल्फ रूल, कि हम खुद को अच्छे तरीके से शासन खुद के ऊपर कर सकते हैं. तो इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हमारे संविधान ने इस बात को वैलिडेट किया और हर नागरिक को वोट करने का अधिकार दिया, हर नागरिक को इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार दिया, और वही जो लीडर्स, एमपीज, एमएलएस जो इलेक्ट हो जाते हैं वही पार्लियामेंट में जाके उनके लिए डिसीजन लेते हैं. सो आवर फ्रीडम स्ट्रगल बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग बाय पीपल. सेकेंडली, आवर कॉन्स्टिट्यूशन provides universal adult franchise under article 326. So universal adult franchise क्या है? Universal means available to all, सबके लिए. all, universal का simple terms है all in the sense regardless of caste. आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी जेंडर के हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को वोट करने का अधिकार है, महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार है. रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन से हो आप वोट दे सकते हो, आप किसी भी कास्ट से हो आप वोट दे सकते हो, किसी भी रीजन से हो आप वोट दे सकते हो. ऐसा बहुत ही कम देशों में शुरू में अपनाया गया. आप मानेंगे स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में भी 1970 के बाद वुमेन्स को वोट करने का अधिकार दिया गया. और ऐसी बीट एग्जांपल ऑफ ब्रिटेन या यूके में भी 1920s के लेट में जाकर वुमेन्स को एट पार विद मेन वोटिंग राइट्स दिए गए. सो वी हैव सीन दैट वर्ल्ड ओवर वुमेन्स को या किसी पर्टिकुलर रेस के पीपल को, फॉर एग्जांपल ब्लैक्स इन अमेरिका, उनको वोटिंग राइट्स बाद में दिए गए. किसी के पास प्रॉपर्टी होती थी उसको कहते थे कि सिर्फ उसको वोटिंग राइट्स है, बट नहीं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट we will give voting right to everyone, universal, regardless of their caste, regardless of their gender, regardless of their religion. An adult in India at present it is 18 years.
सो जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे उसके बाद आपको वोटिंग अधिकार मिल जाएगा। और फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। या चूज करना आप कह सकते हो। वोट का सिंपली मीन्स होता है चूज करना। और ऑल एडल्ट्स इन इंडिया अबव 18 years of age can now vote for their representatives in state elections. Those representatives are called MLAs, member of legislative assemblies, and in national level, union level elections, those leaders, those representatives are called MPs, member of parliament, because they go into the parliament. So ये 18 years का भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इन द सेंस इंडिया में भी स्टार्टिंग में वोट करने का अधिकार 21 ईयर्स से ऊपर की एज लिमिट पे था कि जो 21 साल से बड़ा होगा उसी को वोट करने का अधिकार होगा। बट आफ्टर 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1988 हमने इस एज लिमिट को कम कर दिया। तो अब जब आप अपनी 12th क्लास या फर्स्ट ईयर में होगे तो तब आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। So you can understand this. So why people should decide? We want people to take decision, because when people will take decision, they will be able to understand and take rational decision, and they will take decision which are for the welfare of the all. For example, let us understand it through a story. That in a school, that there is an annual function. एक annual function है और आपके एनुअल फंक्शन में 3 एक्टिविटीज है, सिंगिंग है, डांस है और ड्रामा है। और अगर आपका मन डांस में है तो आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं कि हाँ मैं डांस में जाना चाहता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही आपका मन ड्रामा में है, अगर आपके पास पावर होगी डिसीजन लेने की तो आप चूज कर सकेंगे कि हाँ मेरा मन ड्रामा में, तो मैं ड्रामा चूज करूंगा। बट इन केस अगर हम आपको ये डिसीजन लेने की पावर देते ही नहीं, आपका मन है सिंगिंग में और हम आपको डाल देते हैं डांस में, तो आप वहाँ पे जिंगालाला करेंगे। और अगर आपका मन है डांस में और अगर आपको हम सिंगिंग में डाल देंगे तो आप वहाँ पे उलाला करेंगे। तो द पॉइंट इज सिंपल दैट अगर आपको आपके डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी तो आपके डिसीजन को जो होगा वो आपको हार्मफुली अफेक्ट करेगा, जो कि आप उसको अच्छे तरीके से आपके ऊपर उसका फ्यूचर पे इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली in a country, if we the people are given the power to take decisions, even though it is through our representatives, then we will be able to make better policy and better decisions. Finally, the second part of the chapter is people and representative. That is कि people और representative का क्या connection है। As I have told you earlier, that India is one of world's largest democracy, okay? And in a democracy, we give utmost importance to people. नागरिकों को, सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारा प्रीएम्बल भी स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो ऑल दिस, सो इवेंचुअली इट इज द पीपल who are the sovereign, it is the people जो सबसे उच्च हैं। तो डेमोक्रेसी क्या सबसे ज़्यादा पीपल को इम्पोर्टेंस देती है। जब आप पीपल को इम्पोर्टेंस देते हो तो अब इंडिया जैसी कंट्री जिसमें 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, वो सब एक साथ बैठ के हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए नहीं मिल सकते। किसी को टाइम नहीं होता है और किसी के पास तो व्हीकल भी नहीं होगा और एक जगह पे बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल सकती कि हम सब हर छोटे डिसीजन पे डिसाइड करें। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक क्लास में एक मॉनिटर होता है, वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आपके एरिया का जो एक हम रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं, वो जाके हमारी आगे पक्ष रखता है, हमारी बात रखता है। सो पीपल थ्रू इलेक्शंस इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडिया में हम देखते हैं कि जनरली एवरी 5 years के लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं फॉर द पार्लियामेंट, एंड इवन फॉर द स्टेट असेंबली इट इज फॉर 5 years दैट
we choose them. But this is not like compulsorily that they will be there for 5 years. If they lose their confidence in the parliament, the government will fall and we will have next election. So basically, people through their election choose representative, and these representatives amongst themselves, the one party who has the most representatives or a coalition who has the most number of MPs will form a government. So these representatives form a government. So जब इलेक्शंस होते हैं तो एज वी नो हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा. तो डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं वो लोकसभा के लिए होते हैं और लोकसभा में 545 सीट्स हैं. सो इलेक्शन के बाद 543 वैसे तो इलेक्टेड होते हैं और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं. सो बेसिकली दिस 543 पीपल वी इलेक्ट a group of representative we have chosen, and within that group not everyone will form government. Only those people who have a majority and who belong to the same party or same ideology come together to form the government, and the other party forms the opposition. So this is how the system works in India. So people choose their representatives through election, and after choosing their representatives some people form government, and again after some time this government will fall in the sense that it will complete its tenure of 5 years, and again then people will get power to elect people for the parliament. So this was all about the video, and if you have any questions and any suggestions you can give them back in the comment sections. You can drop that in the comment section, and thank you for watching till the end. Thank you.